Good morning, dear student. Today we will start our new lesson of geography. What will be the name of our lesson? That I will declare you afterwards. Before that, I will show you some pictures, some photographs of plant life. Just you have to observe the every picture. Now see. This is the first pictures of plant. Now see, you are observing some plant life, some trees are there. Okay. Now we will see second picture. Just observe the difference in a photograph of plant life. This is the second pictures. What you observe in second picture? In first picture, what you observed? Green plants are there, green trees are there. Very good. In second picture, what you observe? Yes, trees are not green. Means trees are there, but they are not having all green leaves. Only one tree is there that is having some green leaves, but other trees just shaded their leaves. Now observe third picture. This is third picture. Yes, you are observing some trees. Now what you will observe in first, second and now in third picture? Yes, trees are there, but the height of the trees is less. And as compared to the first photograph, in this picture the trees are not having green leaves, and the height of the trees are also less. Now in fourth pictures, observe what difference you see. This is the fourth pictures. Yes, here also you are observing some trees, green trees you are observing, and trees are near to the mountain, correct? And see the height of the trees is good one. All trees are green, but see the shape of the trees, you know, height it. Then last pictures observe. Yes, see, green trees are there, but those are not too much big trees compared to the earlier trees. Joint trees are there coming to nearer each other, and generally they are having too much roots, and generally the trees are located near a water. So dear student, tell me, what did you observe through these five pictures? Yes, think dear student, आपने क्या देखा? ये पांचों पिक्चर में आपने क्या डिफरेंस देखा है? Find the answer, because the answer will be the name of our lesson. The answer will be related to our lesson, which we will understand today's lecture. Not found? Okay. Once again we will see first picture. See. Yes, you are observing these pictures where too much trees are having a good greeneries. Tall trees are there, and trees are too much crowded. Means greenery is there. So this is also known as a tropical evergreen forest. Means you know the area where more than 200 centimeter rainfall will be there in a state, in a region where more than 200 centimeter rainfall will be there. Their trees will be too much green, the height of the trees will be too much, and this is known as tropical evergreen forest, where the rainfall will be more than 200 centimeter rainfall. In second picture, what we will observe? Yes, trees are too much, but trees are not green, and not too much big also compared to the first picture. So this indicate that here in this region where these type of trees will be available, definitely there will be rainfall not more than 200. So it will be from 70 to 200 centimeter rainfall. 70 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ रेनफॉल मिलेगा, ऐसा स्टेट, ऐसा रीजन, ऐसा कंट्री जहाँ पर दिस ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, मतलब ऐसे ट्रीज
जहाँ पर ट्रीज अपनी पत्तियों को शेड डाल देते हैं ज़मीन पर। तो पेड़ तो रहते हैं बट उनके पत्ते नहीं रहते हैं। तो दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ ट्रीज दैट इज नोन एज अ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड पिक्चर्स व्हाट वी ऑब्जर्व, yes, you can see trees are too much but not green. Again, some trees are very short. So this may be because of the less rainfall. Rajasthan is the best example where we will find the too much short trees, not heighted, and not too much greenery is there in the trees of Rajasthan. And also the trees are having थॉर्न, जो कांटे रहते हैं उसको। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स विच आर अवेलेबल इन अ डेजर्ट एरिया वेयर द रेनफॉल विल बी लेस देन 70 सेंटीमीटर। ऐसा रीजन, ऐसा स्टेट, ऐसा कंट्री जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल बरसात होता है, वहाँ पर ऐसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, ऐसे ट्री पाए जाते हैं। देन फोर्थ पिक्चर्स यू विल ऑब्जर्व द ट्रीज अवेलेबल इन अ माउंटेनस रीजन। पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर बरसात अच्छी होती है, जहाँ पर ट्रीज़ का हाइट भी अच्छा बढ़ता है, ट्रीज़ भी ग्रीन होते हैं क्योंकि वहाँ बरसात उनको अच्छी मिलती है, उनको बोला जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ये नेम जो है ये माउंटेन्स रीजन से लिया है, माउंटेन से लिया है, पर्वतीय प्रदेश से लिया है। ऐसे इसीलिए ऐसे ट्रीज जो पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। पांचवा पिक्चर हमने देखा है सी। इन फिफ्थ पिक्चर ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग सम ट्रीज, बट दीज ट्रीज आर नॉट टू मच heighted and not too much dense, but the roots are too much long and these trees are located near the water. Means generally in a coastal areas this type of trees are available. पानी होता है, पानी में ये ट्रीज आते हैं जिनकी रूट्स आजू बाजू में फैली हुई होती है और पानी के ऊपर ये ट्रीज होते हैं जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है। So dear student, these were the 5 pictures of different trees. First we saw tropical evergreen forest, second tropical deciduous forest, third tropical thorn forest and scrubs, fourth mountain forest and fifth mango forest. So dear student, today in our lesson of geography we will understand all the detailed informations of these 5 types of forest where these types of trees are available. एंड आवर लेसन नेम इज, यस गेस, क्या है अपने लेसन का नाम? यस करेक्ट, क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हम आज के लेसन में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब हमारे इंडिया में कौन से ट्रीज अवेलेबल है रीजन वाइज, स्टेट वाइज, और उसमें कौन से प्रकार के एनिमल होते हैं। एज यू नो दैट जितना ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशंस अवेलेबल होगा इंडिया में या कंट्री में या वर्ल्ड में, उतना प्रकार का वाइल्ड लाइफ होता है। क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट जहाँ पर प्लांट लाइफ होता है दैट इज़ अ नेचुरल हाउस फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए वो एक नेचुरल हाउस होता है। नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन लाइन टू लाइन, just before we will understand important words of the lesson, important concept of the word of the lesson in this lesson. ये लेसन में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में, उसका मीनिंग क्या है हिंदी में, वो अब हम देखने वाले हैं। So now first our word that is vegetation। अब vegetation मतलब क्या?
Plant consider collectively, especially those found in a particular area or habitat. मतलब ऐसा प्लांट का प्रकार जो पर्टिकुलर एरिया में आता है उसको वेजिटेशन बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं. सेकेंड वर्ड है फ्लोरा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा? द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट आता है उसको हम फ्लोरा बोलते हैं. तो प्लांट का ही दूसरा नाम फ्लोरा है. नेक्स्ट वर्ड है फोना. अब फोना मीन्स व्हाट? द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड. द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड. मतलब पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं उनको फौना बोलते हैं. तो दूसरा वर्ड भी है फोना इज नोन एज एनिमल एंड फ्लोरा इज नोन एज प्लांट. नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेचर. द डिग्री और intensity of heat present in a substance or object, especially as expressed according to a comparative scale and shown by a thermometer or perceived by touch. थर्मामीटर के ज़रिए या टच के ज़रिए अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी तापमान का, टेम्परेचर का लगता है तो दैट इज़ हीट आपको लगता है तो उसको टेम्परेचर बोलते हैं. जैसे हम देखते हैं कि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर में टेम्परेचर, बरसात में टेम्परेचर कम होता है. नेक्स्ट वर्ड प्रिसिपिटेशन. अब प्रिसिपिटेशन मतलब ही बरसात. मानसून को ही प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, बरसात को ही प्रिसिपिटेशन बोलते हैं. द एक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेटिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन. मतलब जब किसी सब्सटेंस का अराइवल होता है, जैसे जब पानी आता है तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है इकोसिस्टम. व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम? अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ a biological community of interacting organisms together with their physical environment. फिर से देखो, a biological community of interacting organisms together with their physical environment. मतलब जो भी एनिमल होते हैं, जो भी प्लांट लाइफ होते हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आजू बाजू रहते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं. मतलब हमारे आजू बाजू में हवा है, पानी है, लैंड है, एनिमल है, प्लांट लाइफ है, वो हमारा क्या है? इकोसिस्टम है. देन नेक्स्ट वर्ड है एल्टीट्यूड. व्हाट इज मीन बाय एल्टीट्यूड? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल. फिर से देखो, व्हाट इज मीन बाय एल्टीट्यूड? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल. मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई माउंटेन है, कोई प्लेस है, वो सी लेवल से या ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड. नेक्स्ट वर्ड है लैटिट्यूड. अब व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड? 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय एल्टीट्यूड और व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड. तो आपने जो भी इसमें दिया है उसका वो वैसा का वैसा आंसर आपने लिखना है ना. व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर और ऑफ द इक्वेटर of a celestial object usually expressed in degrees and minutes. अब आपको पता होता है कि the earth is divided in 2 hemisphere, that is northern hemisphere and southern hemisphere. तो
सेंटर से जो भी लाइन गई है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इज़ अ इमेजनरी लाइन। तो इक्वेटर के ऊपर 90 लैटिट्यूड होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उसके नीचे इक्वेटर के नीचे सदर्न पार्ट में 90s इमेजनरी लाइन होते हैं जिसको लैटिट्यूड बोला जाता है। इक्वेटर इज ऑल्सो वन लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स आर नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइंस। आपको पता है द अर्थ इज डिवाइडेड बाय द इक्वेटर इन टू पोल्स। अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर 90s इमेजनरी लाइन होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, और उसके नीचे सदर्न पार्ट में 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी विल अंडरस्टैंड बायोम। अ लार्ज नेचुरली अकरिंग community of flora and fauna occupying a major habitat, example forest of tundra। बॉइम मतलब क्या होता है? अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब ज़्यादा मात्रा में जिस एरिया में वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ, फ्लोरा एंड फोना आपको मिलेंगे, उसको एक रीजन है जिसको टुंड्रा बोलते हैं, उसको बायोम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बायोस्फीयर। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर, दैट वी विल अंडरस्टैंड। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज ऑफ terrestrial and coastal ecosystem promoting solution to reconcile the conservation of biodiversity with its sustainable use। बायोस्फीयर रिजर्व्स मतलब ऐसे एक टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम होता है जहाँ पर प्रोमोटिंग सॉल्यूशंस देते हैं, किसके लिए? टू रिकॉन्सिल्स द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो भी हमारा एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, वो जिंदा रहना चाहिए, अगले जनरेशन के लिए मिलना चाहिए, उसके लिए हम उसको कंजर्व करते हैं, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जूलॉजिकल गार्डन्स। अब जूलॉजिकल गार्डन मतलब जू को ही जूलॉजिकल गार्डन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज अ नेचुरली occurring sanctuary such as an island that provides protection for species from hunting, predation or competition. It is a protected area, a geographic territory within which wildlife is protected। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एक नेचुरल एरिया होता है जहाँ पर जंगली एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द हंटिंग, फ्रॉम प्रेडेशन। जो भी लोग तस्करी करते हैं, जैसे हाथी के शिकार करके हाथी के दांतों को बेचते हैं, या टाइगर के शिकार करके उसकी खाल को यूज़ करते हैं, या उसके दांतों को यूज़ करते हैं, हाथी के दांतों को यूज़ करते हैं, टाइगर के नाखून को यूज़ करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल का एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसके लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल हेरिटेज। नाउ व्हाट इज मीन बाय नेचुरल हेरिटेज? नेचुरल हेरिटेज रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द elements of biodiversity including flora and fauna and ecosystem types together with associated geological structures and formation, that is geodiversity। मतलब नेचुरल हेरिटेज मतलब जो भी हमारा प्लांट लाइफ है और एक एनिमल लाइफ है, उसको हम नेचुरल हेरिटेज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्ट टाइगर?
तो 1 मार्क के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ये 2 लाइन का आंसर लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1973. मतलब 1973 में इंडिया के टाइगर का कंजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जो मर रहे थे टाइगर या जिनका शिकार हो रहा था वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टेन्योर मतलब समय. मतलब 1973 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे तब एक प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम बनाया था, जिसके तहत ये प्रयास किया था कि हमारे इंडिया के जो भी टाइगर है उनका कंजर्वेशन होना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द new words and important concept of the lesson natural vegetation and wildlife. So remaining part of this lesson we will start in next part. Till then, goodbye, have a nice day.